Good evening, everyone. It is my pleasure to welcome you all in the LEAD Mentorpine session. LEAD is an acronym for Leadership Enrichment for Adolescents through Assessment and Development. Its vision is nurturing new generation leaders, and mission is fostering leadership amongst adolescents by providing opportunities to discover, develop, demonstrate their unique abilities for creating and sustaining ethical leadership in society. After 3 years of intense research by a team of psychologists, LEAD framework was developed. It is based on the positive youth development framework of Richard Lerner. LEAD aims to develop leadership capabilities amongst adolescents through four dimensions of competence, collaboration, character, and confidence. Started in 2013, LEAD has already extended its programs to more than 30,000 students. Most of these programs are now available in virtual variants also. So let me just give you a brief about few programs of LEAD. We have the virtual lead camp. It uses various experiential mode to help participants discover and sharpen their leadership capabilities. The Lead Test 2.0 is an online psychometric assessment which is specially designed for high school students. It identifies the key strengths of the students and highlights their areas of improvement. It provides detailed analysis on 17 leadership traits. The Lead Awards. So Lead Awards is one of the most awaited event which is organized every year since 2013. It is a development program come competition for students of 8th to 12th grade, and students from all over India can participate on this platform. Students go through 6 different stages and they develop various skills. The entire program gives them a very real life exposure. Here are some glimpses of the Lead Awards ceremony that we have every year. सो हर साल लीड अवार्ड सेरेमनी में बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स अलग अलग फील्ड से आते हैं एंड दे शेयर देयर एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट्स. And the good news is the 8th annual Lead Awards we have started. It is the registrations are open from today, and this year it is completely virtual program. And I hope we will get back to this after the session. But moving on, we also have the Lead Tinopine session. It is a platform for students. It is a of the students, by the students, for the students platform where students share their ideas, opinions, and views. It helps them develop critical thinking, communication, and confidence. And as you all know, today we have gathered here for the Mentopine session. So Mentopine is a series of webinar for the parents, teachers, and educators, and we have it on every Sunday. So on this Sunday, we have with us Mr. Paresh Bhatt, the Director of Advice and Assist. Mr. Paresh is a science graduate having experience of more than 23 years in various industries, nationally as well as internationally. He is a trainer by passion and has an innate ability to take participants on the knowledge tour with fun and learning experience. So, sir, welcome to Lead Mentorpine. We are very happy to have you here today. And Thank I you. would now like to hand over the stage to you. Thank you, Shivani. Thank you very much. And welcome to the world of successful people. I request all of you to please be with me, and we are going to start a one small quiz or poll, rather not the quiz but poll. So, Shivani, can you help me to get the result of this poll by conducting this question and rest of all? Friends, today's subject is online teaching. Before we go further in the subject, थोड़ा सा हम बात आपसे कुछ जानना चाहेंगे. आपके समझ में ये ऑनलाइन टीचिंग कितना महत्वपूर्ण है? मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पोल जो है, पोल इसमें जाइए, वहां पे यू विल फाइंड वन क्वेश्चन. डू यू थिंक ऑनलाइन एजुकेशन इज इफेक्टिव? इसमें दो है, यस और नो. आपको 1 मिनट का समय हम देंगे और 1 मिनट के अंदर अंदर आप ये पोल में अपना आंसर लिख के सबमिट द वॉट, इस प्रकार से आप अपना ओपिनियन दर्ज करवाइए. बाद में हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे. सो नाउ लेट अस गेट एंटर्ड इन द टुडेज सेशन. टुडेज सेशन इज रोल ऑफ ए पेरेंट एंड टीचर इन ऑनलाइन लर्निंग. दोस्तों, कोविड ने जो कुछ भी चेंज किया है वो 100 दिन में, विद इन द स्पान ऑफ 100 days,
जो भी चेंज हुआ है, ये शायद ही इतना बड़ा चेंज जिंदगी में पहली बार आया है। दोस्तों, 100 साल में जो चेंज नहीं हो सकता था, ऐसा 100 दिन में ये चेंज हो गया है। तो सबसे पहले तो हम बात ये करना चाहेंगे कि इस सब्जेक्ट के ऊपर व्हाई द डिस्कशन ऑन द सेम काइंड ऑफ सब्जेक्ट। नंबर 1, कि अभी तक जो चेंज हुआ है वो अनबिलीवेबल चेंज हुआ है। सेकंडली, वॉट एवर इट हैज चेंज, इट इज इरिवर्सिबल चेंज। अभी वापस नहीं आने वाला चेंज हुआ है, मतलब हमको नई परिस्थिति का स्वीकार करना पड़ेगा। सो नंबर 2, नंबर 3 इज, अभी आजकल जो मार्केट में एक एक जो हवा चल रही है कि ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट द वर्थ टीचिंग, इसके बारे में भी हमको कुछ देखना पड़ेगा। और चौथी बात है कि नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट हैव इज इंक्रीज्ड। सो लेट मी एंटर इन द सेशन। लेकिन मैं ये समझता हूं, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये एक शब्द लिखा है, वो शब्द गुजराती में लिखा है। शब्द का ऊपर जो लिखा है इसका मतलब है अनुष्ठान। दोस्तों, ये अनुष्ठान शब्द को समझना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब भी एक माँ बाप या टीचर किसी स्टूडेंट या अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए रात और दिन जो जहमत उठाते हैं, वो एक अनुष्ठान है। अनुष्ठान शब्द का मतलब होता है एक ही जगह पे बैठ के, एक ही समय पे एक फिक्स किया हुआ काम करना, दैट इज अनुष्ठान। और किसी इंसान ये अनुष्ठान करता है, लगातार ईमानदारी से डेडिकेटली एफर्ट करता है, तब जाके जो रिजल्ट मिलता है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलता है, और इसीलिए हम इसको अनुष्ठान कहते हैं। यहाँ पे हर विषय का प्रवेश करेंगे, वी विल एंटर इन द सब्जेक्ट विथ वन स्मॉल स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार ऐसा हुआ कि कोई सन्यासी था, वो संसारी के घर पे खाना खाने के लिए आए। और संसारी के घर पे खाना खाने के आए, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहे थे। एट दैट टाइम वो जो सन्यासी थे, वो सन्यासी ने एक बात बताई। सन्यासी ने बात ये बताई कि मैंने जंगल में जाके सालों तक एक तपश्चर्या की है, और वो तपश्चर्या जो की है, इसका फल स्वरूप हम खाना खा रहे हैं, पानी का गिलास वहां पे पड़ा है, मैं अपनी मंत्र शक्ति से वो पानी का गिलास वो अपनी ओर ले जा सकता हूँ। मीन्स आई कैन फेच दैट, मैं उसको यहाँ मेरी तरफ ला सकता हूँ। उसने ऐसा ही कोई मंत्र पढ़ा, और वो पानी का भरा हुआ ग्लास था, वो उसके नजदीक आ गया। देखो, ये मेरी शक्ति है, ये मेरा अनुष्ठान है, ये मेरी साधना है। तो जैसे ही ये बात बताई, तो संसारी ने बोला कि स्वामी जी, आपने जंगल में जाके ये पानी का ग्लास आपकी ओर आ जाए, इस प्रकार की जो साधना की है, इससे भी बहुत बड़ी साधना मैंने की है। तो स्वामी जी तो ऐसे ही विस्फारित नेत्रों से देखते रहे, हाउ व्हाट दिस मैन इज टॉकिंग, मेरे से भी ज्यादा तुम्हारे पास साधना है? बोले हाँ सर, बताओ, प्रमाण दो। तो उसने अपने बच्चे को बुलाया, पिंटू इधर आओ बेटा। पिंटू आया, वो पानी का गिलास पड़ा है, वो पानी का गिलास मुझे दे दो। पिंटू वहां उठा, गया, पानी का गिलास लिया और पापा जी के पास रख दिया। पिंटू चला गया, और संसारी ने स्वामी जी को बोला कि ये आपके पास जो मंत्र की शक्ति है ना, इससे भी बड़ी साधना है कि बच्चा अपना बाप का कहा माने। इसी समय में हम अभी पेरेंटिंग और आने वाले समय में ऑनलाइन टीचिंग के बारे में, बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का जो 21वीं सदी का बच्चा है, स्टूडेंट है, जिसका जन्म 21st सेंचुरी में हुआ है, वो 5 प्रकार की गिफ्ट लेके ही इस दुनिया में आया है। उसमें सबसे पहले गिफ्ट है हाई स्पीड इंटरनेट। हाई स्पीड इंटरनेट जब हम छोटे थे तब ये नहीं था। दूसरी गिफ्ट है, दैट इज हाई कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप या कंप्यूटर। तीसरा है, तीसरा जो है वो है हाई एंड मोबाइल, यानी कि अभी जो एंड्रॉयड फोन या स्मार्टफोन जिसको हम कहते हैं, वो स्मार्टफोन है। चौथा जो है वो है सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया के तहत आजकल के समय के अंदर बच्चे अपना ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। और पांचवा है वो है डिजिटल गेम। आयरनी इज दिस फ्रेंड्स, कि जिस इंसान को हम पढ़ाने जा रहे हैं एज ए टीचर या फिर डेवलप करने जा रहे हैं एज ए पेरेंट, वो 21वीं सदी का बच्चा है, और उसको डेवलप करने वाले 20वीं सदी यानी कि पुरानी सदी का इंसान है। ये 5 प्रकार की गिफ्ट लेके जो बच्चा आज हमारे सामने आया है, इसको हम अभिमन्यु भी कह सकते हैं, और इसको पढ़ाने के लिए हमको कुछ नए तरीके की आवश्यकता पड़ेगी।
21st बिफोर कोविड जो हम टीचिंग करते थे या माँ बाप की जिम्मेवारी थी वो कुछ अलग थी। आफ्टर कोविड अभी टीचर या माँ बाप की जिम्मेवारी में कुछ जो परिमाण है वो परिमाण बदल गए हैं। और इसीलिए दोस्तों नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड दैट इज yes there is some am I audible? Yes, okay, next slide please. ओके तो फ्रेंड हमको अब ये देखना है कि अभी आज का जो ये हमारा जो सेशन है इसमें केंद्र में बच्चा है, बड़ा स्टूडेंट है, पेरेंट भी उसके लिए काम कर रहे हैं, टीचर भी उसके लिए काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमको देखना यह है कि आने वाले समय में माँ और बाप को या टीचर और पेरेंट को किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों मैं आज जो आपके सामने एक फॉर्मूला रखने वाला हूं वो फॉर्मूला है 3F फॉर्मूला। Now, the first F that is the fast, second F that is fit, and third F that is fresh. We will have to be very fast. As a parent, we will have to be very fast. डार्विन ने ऐसा बोला है कि फिटेस्ट विल सर्वाइव। फिटेस्ट विल सर्वाइव की जगह पे अब फास्टेस्ट एंड फिटेस्ट विल सर्वाइव। अभी थोड़ा सा कुछ चेंज हो गया है और इसीलिए हमको अपने आप को अंदर से बदलना पड़ेगा। और इसके अलावा एक बात मैं आपको बताता हूं। एक बार ये जो चेंज करने की बात है इसमें बात ऐसी थी कि एक बार बादल आकाश में रहे जो बादल है इसने एक स्ट्राइक कर दी। वो स्ट्राइक करने के बाद उसने ऐसा डिसाइड कर दिया इस साल हम बरसने वाले नहीं है, इस साल हम नहीं बरसेंगे। और पृथ्वी के ऊपर उसने एक नोटिस भी भेज दी कि दिस ईयर वी आर नॉट गोइंग टू रेन, यानी कि हम बरसने वाले नहीं है, तो आप अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था करें। जितने भी फार्मर्स थे वो सभी फार्मर्स को ये नोटिस मिला, तो सभी फार्मर ने बोला कि हम अभी बरसने वाले नहीं, काम कर खेती करने वाले नहीं है, क्योंकि खेतर हम जोतेंगे क्यों, क्योंकि जब बारिश ही नहीं आएगी तो हमारा काम कैसे होगा। लेकिन एक खेडूत ऐसा था उसने अपना खेतर का जो एक काम करने वाला था वो खेतर का काम उसने चालू ही रखा। ऊपर से बादल देखते थे, ऊपर से बादल जैसे ही देख रहे थे तो एक बादल ने सोचा कि एक खेडूत क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस जेंटलमैन इज डूइंग, क्योंकि हमने बारिश तो हम करने वाले नहीं है, नीचे पानी गिरने वाला नहीं है, सो डेफिनेटली वहां कुछ अभी पैदाइश होने वाले नहीं है, तो व्हाई दिस जेंटलमैन इज डूइंग वर्किंग ऑन दिस। वो बादल नीचे आया और वो खेडूत से बात बोलने लगा कि हमको आपको मालूम है हम बरसने वाले नहीं है, तो भी आप इतना मेहनत क्यों करते हो। और जो फार्मर ने जवाब दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था। फार्मर ने ये बोला कि मुझे मालूम है कि आप बरसने वाले नहीं हो, लेकिन मैं तो मेरी प्रैक्टिस छूट न जाए, मैं ये जो औजार है वो औजार के साथ अपनी जो स्किल है वो स्किल भूल न जाऊं, इसीलिए मैं ये काम करता रहता हूं। बादल गया अपने अपने जो ग्रुप था वो ग्रुप में जाके बात बोली कि एक जो फार्मर है वो बोल रहा है कि यदि मैं मेरा काम छोड़ दूंगा तो मेरा काम की जो स्किल है, वो जो लगन है शायद वो कम हो जाएगी, इसलिए मैं काम करने वाला हूं। तब बादल ने सोचा कि यदि हम हड़ताल पे है, यदि हम स्ट्राइक पे है और हम बरसना भूल जाएंगे तो क्या होगा। फाइनली उसकी जो स्ट्राइक थी वो टूट गई और ऊपर से बारिश गिरी। जिस फार्मर ने अपना खेत को इस प्रकार से तैयार किया था वहां पे फसल उगी, बाकी जगह पे सिर्फ घास उगे। दोस्तों कहने की तात्पर्य यही है कि हमको अब तैयारी करनी पड़ेगी। नाउ वी विल हैव टू गेट रेडी, और इसीलिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी। और दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब यहां से हम थोड़े धीरे धीरे बात करेंगे। दोस्तों बिफोर कोविड टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। सबसे पहला बुलेट पॉइंट हम देखेंगे तो सब्जेक्ट टीचिंग। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ने जो भी सिलेबस उसको तय किया था वो सिलेबस को पढ़ाना ये उसकी जिम्मेवारी थी, और टीचर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे। बुलेट पॉइंट नंबर 1 यदि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है तो सब्जेक्ट टीचिंग, जो विषय था वो विषय के ऊपर उसको पढ़ाना था। यहां थोड़ा सा एक और भी बात मैं आपसे बता दूं और आपके साथ मैं ये शेयर करना चाहूंगा। टीचर क्यों पढ़ाते हैं। टीचर बिकॉज ऑफ 5 रीजंस टीचर आर टीचिंग।
रीजन नंबर वन, दैट इज जस्ट टू प्रूव हिज एग्जिस्टेंस। वो अपना अस्तित्व को साबित करने के लिए, मतलब यदि हमने इस कंपनी में या इस स्कूल में या कॉलेज में हम तनख्वाह लेते हैं तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। नंबर वन रीजन। नंबर टू रीजन, जस्ट टू एक्सप्रेस द क्राउड। जो हमारे सामने स्टूडेंट्स है या फिर हमारे सामने जो भी एक वर्ग बैठा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसके ऊपर छा जाने के लिए टीचर पढ़ाते हैं। नंबर तीन, जो कंटेंट उसको सिखाने की जिम्मेवारी एज ए टीचर मेरे ऊपर है, वो बच्चे को मैं सिखाना चाहता हूं। तो ये जो तीन रीजन है वो बहुत निम्न कक्षा के रीजन है। चौथा रीजन ये है कि बच्चा खुद अपने आप से सीखने के लिए तैयार हो जाए, वो खुद सीखे। और पांचवा नंबर जो है वो है, सबसे ऊपर है, बच्चा एक अच्छा ह्यूमन बीइंग और स्टूडेंट कैन बिकम ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो दीज आर द फाइव रीजन टीचर टीच करते हैं। अभी इसके नीचे जो हम जाएंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट, दिस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑफ नाउ। ओवरऑल डेवलपमेंट में हम कहते हैं क्रिएटिविटी बाय डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। बच्चे में क्रिएटिविटी पैदा होती है, अब पैदा होनी चाहिए, एंड दिस वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर बिफोर कोविड। डिसिप्लिन, हमको मालूम है आजकल के बच्चे में डिसिप्लिन लाना वो थोड़ा सा दिक्कत वाला भी काम है, इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट एज वेल एज चैलेंज ऑल्सो। तो बच्चे में, स्टूडेंट में डिसिप्लिन लाने के लिए ये एक कोशिश करने होती है। देन टाइम मैनेजमेंट, हर एक जो एक क्वालिटी है, वैल्यू सिस्टम है, एजुकेशनल टूर है, स्पोर्ट्स है, या बच्चों में जो पढ़ाई के लिए रिस्क निष्पत्ति यानी कि रीडिंग जो है, दिस ऑल वेर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर बिफोर कोविड। एंड व्हाट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट? पेरेंट की क्या जिम्मेवारी थी? सबसे पहली जिम्मेवारी मदर की बात करें तो मदर को बच्चे को सुबह में समय पे वेकअप कॉल देके उसको उठाना है, उसको हॉस्पिटैलिटी, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके साथ-साथ उसको हेल्प करना है, उसको सुबह-सुबह में नाश्ता या न्यूट्रिशनल फूड बना के अच्छी तरीके से बच्चे को स्कूल के लिए रवाना करना है। सुबह में 7-8 बजे बच्चा स्कूल गया, डेढ़ 2 बजे वापस आएगा, तब दोबारा न्यूट्रिशनल फूड या फिर और कोई बात है, वो उसको हेल्प करना है, होमवर्क करवाना है। यदि बच्चा छोटा है तो दोपहर को आराम करवाना है, जो भी है वो मम्मी की जवाबदारी थी, मदर की जवाबदारी थी। बिफोर कोविड फादर की जिम्मेवारी 3 हुआ करती थी। नंबर 1 दैट इज फीस, हर 6 महीने पे स्कूल या कॉलेज की फीस का एक चेक देना था। बच्चे को कुछ स्टेशनरी चाहिए तो स्टेशनरी भी देनी थी, और पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके अपने बच्चे की जो ये पीटीएम में जो उसकी कुछ छोटी-मोटी क्वेश्चंस है, ओपिनियन है, डिस्कस करने थे। इन शॉर्ट नटशेल में हम देखा जाए तो टीचर और पेरेंट की, अभी जो मैं बात बता रहा हूं और आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है, इट इज अ वेरी नॉर्मल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। अब आएगा आफ्टर कोविड क्या हाल होने वाला है। यस, नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब जितने भी टीचर्स या जितने भी एजुकेटर मुझे सुन रहे हैं, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ा सा गौर और कीजिएगा। नाउ द एरा हैज चेंज, टोटल डायमेंशन ऑफ टीचिंग हैज बीन चेंज। कैमरा वर्सेस क्राउड। अब तक हम क्राउड के सामने बोलते थे, अब वी हैव टू डिलीवर अवर लेक्चर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। दोस्तों, अभी मैं मेरे स्टूडियो में सिर्फ अकेला हूं और विजुलाइज कर रहा हूं कि करीबन करीबन 20-22 लोग मुझे देख रहे हैं और मैं ये सेशन यहां से डिलीवर कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि क्राउड के सामने जो बोलने की हमारी एक आदत है, जो हमारी एक हैबिट है, और कैमरे के सामने बोलने की हमारी आज की जो तैयारी है, इसमें परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा फर्क आने वाला है। और इसीलिए नाउ टीचर विल हैव टू शिफ्ट देयर वर्क फ्रॉम क्राउड टू कैमरा। मैं ये भी कहता हूं कि वर्तमान समय में यदि कोई युधिष्ठिर का अवतार है तो अरीसा है, आईना है और कैमरा है। आईना और कैमरा दोनों कभी झूठ नहीं बोलते हैं, और इसीलिए जो 5 प्रकार के टीचर थे, इसमें से दूसरे नंबर के छा जाने वाले, एक्सप्रेस करने वाले जो टीचर है, उसके लिए कैमरा के सामने जाके बोलना शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होने वाला है। और इसीलिए आफ्टर कोविड अभी हम जो काम कर रहे हैं, इसमें टीचर्स को एक रिक्वेस्ट है, यू विल हैव टू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा।
और जैसे ही कैमरा के सामने हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में हमको कुछ कुछ बातें ऐसी है जिसके ऊपर बहुत गौर करना पड़ेगा, और वो गौर होगा आपको अपना कम्युनिकेशन, कैमरा की आंख के सामने हमारी आंख रख के जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसमें 3 बातें आएगी। नंबर 1 होगा वॉइस क्लैरिटी, आवाज की शुद्धता। दूसरा होगा वॉइस फ्रीक्वेंसी, आवाज की तीव्रता। और तीसरा होगा वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज का चढ़ाव उतार। इसके बारे में समय की मर्यादा नहीं होगी तो हम बात करेंगे। सेकंड, अब ऑनलाइन टीचिंग है और इसीलिए उसका जो ऑडियंस है वो ऑडियंस 3 गुना बढ़ गया है। उसका ऑडियंस 3 गुना बढ़ गया है। पहले जब ऑफलाइन टीचिंग करते थे तब आपके क्लास में, टीचर के क्लास में 50 या 60 बच्चे बैठ के टीचर उसको पढ़ाते थे। अब पूरा का पूरा परिमाण चेंज हो गया है। अब ऑनलाइन के माध्यम से टीचर बच्चे के घर पे जाएंगे और जैसे ही बच्चे के घर पे जाएंगे तो वहां सिर्फ बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बट अलोंग विद द स्टूडेंट्स दैट पेरेंट्स विल बी आल्सो ऑब्जर्विंग यू। और इसीलिए उसके पेरेंट पढ़े लिखे हैं, इफ दे आर वेल लर्नेड एंड एजुकेटेड, देन टीचर विल हैव टू give the better delivery of their content in terms of communication, in terms of relevant examples and all. और तीसरा जो उसका ऑडियंस होगा होगा उसका कॉम्पिटिटर। हमको मालूम नहीं है कि कौन से कैमरा से हमारा कॉम्पिटिटर भी हमको देख रहे हैं, और वो भी हमारा काम करने का सीक्रेट भी जान सकते हैं, या फिर हमारी कुछ वीकनेस है वो भी उसके सामने कैमरा के माध्यम से सामने आने की संभावना है। और इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट टीचर विल हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एंड very well equipped in front of the camera when they are delivering their lecture when online teaching. So this is a small part. Now coming to parent. So friends, now anybody who is watching me is parent. तो parent को सबसे पहले चेंज आ रहा है, that is now your child is studying, is study at your home. Education is happening at your home, and teacher is reaching at your place through the various online platform. अभी तक आपका बच्चा स्कूल में जाता था, अब स्कूल के टीचर आपके घर पे आ रहे हैं, और इसीलिए अब नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट हैज बीन इंक्रीज्ड। और दूसरी बात है जो टीचर में, कैन यू गिव द प्रीवियस स्लाइड? यस, ये ओवरऑल डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है, क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, वैल्यू सिस्टम, एजुकेशनल टूल या स्पोर्ट्स या रीडिंग, ये पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है, इट हैज बीन कम इन द लैप ऑफ द पेरेंट। नेक्स्ट स्लाइड। अब जो है वो जिम्मेवारी पूरी की पूरी बदल गई है। अब तक क्या हुआ करता था कि ये जो भी डिसिप्लिन है या फिर क्रिएटिविटी है या कम्युनिकेशन है, वो सभी जिम्मेवारी स्टूडेंट की स्कूल में कैटर की जाती थी। नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट, बिकॉज योर चाइल्ड, योर सन और डॉटर स्टडीज एट होम, एंड इसीलिए we will have to demonstrate all these qualities in front of the in front of your child. Next slide. दोस्तों, दिस इज फॉर द टीचर्स। टीचर्स इस बात को बहुत गौर करना। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइंस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। साइंस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग में सबसे पहली बात है, इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए लेक्चर ऑफ 30 मिनट टाइम, तो उसकी सबसे पहली जो 1 मिनट है, वो सबसे पहले द फर्स्ट मिनट इज फॉर द ओपनिंग ऑफ द सेशन एंड रिकैप। हमको सेशन को ओपन करना है और उसको रिकैप करना है, तो 1 मिनट में ये सब कुछ कर देना है। सेकंड यानी कि दूसरी मिनट है, दैट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द डे। आज हम किस सब्जेक्ट के बारे में या कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर सीखने वाले हैं, दिस इज फॉर द सेकंड मिनट। मतलब लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो हमको नेक्स्ट 1 मिनट यानी कि 2 मिनट जैसे ही हमारी वीडियो ओपन होती है, तो पहले मिनट में ओपनिंग, वेलकम, वार्म वेलकम एंड रिकैप, लास्ट चैप्टर में या लास्ट सेशन में हमने क्या सीखा था, बाकी के 1 मिनट में लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द डे, या फिर इसको कहते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द एंटायर डे। बाद में दोस्तों आता है 16 मिनट मेन कंटेंट। मनोविज्ञान का अभी अभी एक नया एक रिसर्च आया है
कि हम कोई भी वीडियो देखते हैं, चाहे फेसबुक में हो, यूट्यूब में हो, इंस्टाग्राम पे हो, हमारा फुल कंसंट्रेशन 16 मिनट तक रह सकता है। Continue, it can continue for the 16 minute, more than 16 minute long वीडियो हमारा फोकस जो है इट गेट्स डाइवर्टेड। इसके बाद 5 मिनट टोटल 5 मिनट आपको लेना है टू शो योर वीडियो, योर ग्राफ्स और चार्ट एंड एक्सेट्रा। बाकी की 5 मिनट है दैट इज फॉर द फीडबैक सेशन और क्वेश्चन एंड आंसर एंड डाउट्स। इफ एनी डाउट्स इज देयर वी कैन मेक द कॉन्वर्सेशन विद द स्टूडेंट इवन। और बाद में जो 2 मिनट है इसमें हम सम अप करेंगे, समिंग अप ऑफ द एंटायर सेशन एंड रीइंफोर्समेंट ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि मध्यवर्ती विचार को दोबारा हम प्रतिपादित करेंगे। और ये लास्ट की 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इफ वी विल नॉट रीइंफोर्स द सेंट्रल आइडिया, इफ वी विल नॉट रीइंफोर्स द लर्निंग ऑब्जेक्टिव, तो बच्चा शायद वो मैसेज भूल जाएगा जो हम पढ़ाना चाहते थे। और इसीलिए दिए हुए रिलेवेंट एग्जाम्पल, दी हुई रिलेवेंट स्टोरीज, वो सब कुछ दिमाग से निकल जाएगा और मेन कंटेंट उसके दिमाग में बैठ जाएगा। सो ऑल पुट टुगेदर इट इज 30 मिनट टाइम और ये 30 मिनट का ब्रेकअप है। वी विल हैव टू गो विद द ऑनलाइन टीचिंग इन दिस ब्रेकअप। और एक लाइन आएगा, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। Yes, friend, this is very important. 1 hour, more than 1 hour preparation by the faculty to create this 30 minute video. ये 30 मिनट का वीडियो बनाना है तो हमको करीबन करीबन 1 घंटे की 1 hour प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि कैमरे के सामने यदि हम अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे तो और भी इफेक्टिव ऑनलाइन ट्रेनिंग होने की संभावना है। नेक्स्ट स्लाइड। Yes, very important. These are the key factors. Friends, as in when you are preparing for the online training, very important audio and video. Your audio should be very clear. Wherever you are sitting to prepare this video or delivering your online lecture, there should not be any noise. And if it is possible, there should be some background music. मैं तो ये कहता हूं कि तानपुरा का म्यूजिक यदि आप बजा सकते हो तो बैकग्राउंड में आप तानपुरा में डी इन माइनर बजाइए। बहुत ही एक कंसंट्रेशन फोकस करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है तानपुरा का म्यूजिक। और इसीलिए फर्स्ट दैट इज द ऑडियो, बाद में आता है वीडियो। वीडियो जैसे ही आप बनाते हो, मैंने बहुत से ऐसे टीचर्स को, आई हैव सीन मैनी टीचर्स प्रिपेयरिंग दिस वीडियो, उसका चेहरा ही नहीं दिखाई पड़ता है, वी कैन नॉट सी द फेस इवन। तो चेहरे के ऊपर पूरी लाइट होनी चाहिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चेहरे पे लाइट नहीं होगी तो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन बच्चे कैसे देख पाएंगे। और सेकेंडली, फोकस ऑन द कंटेंट। यदि आप चेहरे पे ऊपर कैमरा नहीं रखने वाले हो तो आपका जो कंटेंट बोर्ड पे लिखने वाले हैं या फिर आप पीपीटी में करने वाले हो, वो पूरा का पूरा हाई डेफिनेशन कैमरा से रिकॉर्ड करो। क्योंकि यदि दृश्य और श्रव्य, ऑडियो एंड वीडियो, इफ इट इज नॉट क्लियर, इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इफेक्टिव ऑनलाइन टीचिंग। नाउ कमिंग टू वॉइस क्लियरिटी। यस फ्रेंड्स, कभी कभार हम देखते हैं आवाज की शुद्धता होना, जैसे मैंने अभी बताया था प्रीवियस स्लाइड में, आवाज की शुद्धता होना बहुत आवश्यक होता है। एक शब्द की जगह पे दूसरा शब्द चला गया तो अर्थ का अनर्थ होने की संभावना है। सो वॉइस क्लियरिटी। बाद में आता है वॉइस फ्रीक्वेंसी। यस फ्रेंड, इतना लो टोन या इतना हाई टोन में नहीं बोलना चाहिए। और बाद में होता है वॉइस मॉड्यूलेशन, आवाज का चढ़ाव उतार। यस फ्रेंड, यहां से थोड़ा सा आपका 2 मिनट में आई विल टेक मोर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हम एग्जाम्पल लेते हैं, इट इज अ वेरी वेरी कॉमन। यदि एक बहुत बड़ा डायलॉग है, 3 शब्द का डायलॉग है, ये मैं आपको यहाँ चैट में लिखने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। यदि आपके पास वो डायलॉग है तो आप मुझे याद करके बताइए, ऐसा कौन कौन सा 3 शब्द का डायलॉग है जो सिर्फ 3 शब्द बोलो और आपको वो पात्र आपके सामने आ जाएगा। और वो डायलॉग का नाम है, मुझे लगता है कि मैं ही बोलूं क्योंकि समय की मर्यादा है, 5:31 ऑलरेडी हो चुकी है। वो है कितने आदमी थे। शब्द 3 ही है, कितने आदमी थे। लेकिन जैसे ही हमने ये डायलॉग बोला तो हमारे सामने वो गब्बर सिंह आ गया। दोस्तों, दिस इज द पावर ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन।
जंजीर का अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, जब तक बैठने को बोला ना जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। ये जो फ्रीक्वेंसी और वॉइस मॉड्यूलेशन का जो कॉम्बिनेशन है, इसीलिए ये डायलॉग अमर हुआ है। यदि ये डायलॉग को अमिताभ बच्चन ने इस प्रकार से बोला होता, जैसे रेलवे स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता है, जब तक बैठने को बोला न जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तो शायद ये डायलॉग अमर नहीं होता। और इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं, वॉइस मॉड्यूलेशन इज प्लेइंग ए वेरी वाइटल रोल इन कम्युनिकेशन। और इसीलिए हमको शब्द का शुद्ध उच्चारण, वॉइस क्लैरिटी, वॉइस फ्रीक्वेंसी और वॉइस मॉड्यूलेशन। कैन एनीबॉडी टेल मी वन वर्ड डायलॉग? एक शब्द का फिल्म इंडस्ट्री का डायलॉग, सिर्फ एक शब्द। यू कैन सेंड चैट बॉक्स। चलो मैं आपके लिए 2-5 सेकंड वेट भी कर सकता हूं। सिर्फ एक शब्द है, लेकिन जैसे ही वो शब्द बोलते हैं तो वो बोलने वाला हीरो हमारे सामने आ जाता है। और यस, वो तो उच्चार है। श्याम बेबी जी आपने लिखा ना हाई, ये हाई कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन वो तो उसके बाद की बात में बोलने वाला था। मैं आपको बताऊं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खामोश, जैसे ही कोई खामोश बोलता है तो आपके सामने वो शत्रुघ्न सिन्हा आ जाता है। जक्कास, तो आपके सामने आ जाता है अनिल कपूर। और लो टोन में बोलता है बाबू मोशाई। बाबू मोशाई जैसे ही बोलते हैं तो हमको राजेश खन्ना जी हमारे सामने आ जाता है। मतलब दिस इज द पावर ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। अब आते हैं जो शांभवी जी ने बताया, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है, सिर्फ उद्गार है। हाई, आओ, ये जो है, ये जो सिर्फ शब्द है, उद्गार है, लेकिन जैसे ही हमारे सामने आता है, इमीडिएट वो इंसान हमको याद आ जाता है। या जितने भी लोग मेरे साथ गुजराती है और जुड़े हुआ है, यस पुष्पा, यस, बस 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 बहुत बहुत हो गया। तो दोस्तों, जितने लोग मेरे साथ गुजराती लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक उद्गार यहां से बोलूंगा और वो समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो शब्द ही नहीं है, सिर्फ उद्गार है। ओ हो 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 हो, गुजरात का बहुत नट सम्राट कॉमेडी रमेश मेहता का ये डायलॉग है। ऐसे बोलता है और लोग समझ जाते हैं कि रमेश मेहता ही हो सकता है। दोस्तों ये क्या है? दिस इज द पावर ऑफ वॉइस मॉड्यूलेशन। और मैं कहता हूं, यदि आप टीचिंग प्रोफेशन में हो तो आपका वॉइस मॉड्यूलेशन पावरफुल होना आवश्यक है। इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी अ सक्सेसफुल टीचर। यदि आप वो नहीं करेंगे तो आपको टीचर के तौर पे काम करने का कोई अधिकार नहीं रहता है। क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग विद दिस पावरफुल वॉइस मॉड्यूलेशन, तो हम सिर्फ बच्चे को वो हमारी वो हमको वो हमारी आवाज नहीं सुनते हैं, वो यहाँ का एटमोस्फेयर फील करते हैं। आप देखिए दोस्तों, वॉइस मॉड्यूलेशन की बात चल रही है, इसीलिए कहता हूं कि इस दुनिया में जब भी प्यार या फिर कोई इमोशन की बात आती है, लो टोन होता है। आपने कभी किसी एक हीरो को एक हीरोइन के सामने प्यार का इकरार करते वक्त ऊंची आवाज में नहीं देखा होगा। गुस्सा जब होता है, कोई ऑर्डर होता है, तब वो हाई टोन में जाता है, जिसको संगीत की भाषा में हम तार सप्तक कहते हैं। और इसीलिए दिस वॉइस मॉड्यूलेशन इज प्लेइंग ए वाइटल रोल। नाउ कमिंग टू एक्सप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टीचर्स के लिए जब हम कैमरा के सामने आएंगे तो हमारा फेस एक्सप्रेशन, हमारा हैंड मूवमेंट और हमारा ड्रेसिंग बहुत ही मायने रखता है। आप देख सकते हो दोस्तों, मेरे बैकग्राउंड व्हाइट कलर का है और व्हाइट कलर का कंट्रास्ट करने के लिए मैंने डार्क कलर के शर्ट पहना है। क्यों ऐसा किया है? यदि मैं व्हाइट शर्ट पहन के आता तो आज क्या होता? शायद आपकी आंखों को मेरा जो चित्र है वो शायद वो चित्र इतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जब सामने वाला हमको देखता है तब हम कैसे लगेंगे, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात है फेस एक्सप्रेशन। आजकल के समय में हम मास्क लगा के निकलते हैं, हम लोगों को पहचानते नहीं है। मतलब चेहरा है वो इंसान का एक आइडेंटिटी, वो हमारा एक साइन बोर्ड है, इट इज अ लोगो ऑफ अवर बॉडी। और इसीलिए चेहरा को जो एक्सप्रेशन है वो दिखना चाहिए और अच्छे होना चाहिए। सेकेंडली, हैंड मूवमेंट। याद रखना दोस्तों, हमारा हाथ का जो मूवमेंट है वो ओवर मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए और पूरा का पूरा ऐसे ही करके बैठ जाओ और जो बोलना है वो बोल जाओ। नहीं, शरीर की एक भाषा होती है।
विज्ञान ऐसा कहता है, इफ वी आर गिवन एनी 1 और 2 सेंटेंस, यदि हम 1 या 2 सेंटेंस दिए जाते हैं, शब्द की इफेक्ट 7% होती है, वो किस प्रकार से बोला जाता है इसकी इम्पैक्ट 38% होती है। दोनों को मिला दो तो इट इज 45%, एंड रेस्ट ऑफ द 55% इम्पैक्ट इज बिकॉज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। यदि मैं आपको व्हाट्सएप में या किसी बोर्ड में या कहीं से लिख के एक सेंटेंस में आपको दे देता हूं, और सेंटेंस में ऐसा लिखा है कि यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो वो चीज मिलाने में पूरी कायनात जुट जाती है। यदि मैंने सुबह में आपको ऐसा व्हाट्सएप कर दिया, आप पढ़ेंगे, ठीक है, इट्स ओके, कुछ लिखा है, 7% इम्पैक्ट। लेकिन इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन और वेलवेट वॉइस ऑफ शाहरुख खान आएगा और बाद में वो हम सुनेंगे, तो इसकी इम्पैक्ट 45% हो सकते हैं। यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो वो चीज मिलाने में पूरी कायनात जुट जाती है, 45%। और इसके साथ यदि शाहरुख खान की एक्टिंग आती है और अपना दोनों हाथ खोल के सिग्नेचर स्टाइल में यदि वो स्टेच्यू के सामने जाके बोलता है, यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हो तो वो चीज मिलाने में पूरी कायनात जुट जाती है, एक्सप्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, इम्पैक्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। और इसीलिए दोस्तों, हमको ये बॉडी लैंग्वेज कैमरा के सामने सीखनी पड़ेगी एज ए टीचर। और बाद में आता है ड्रेसिंग। ऐसे ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, लेकिन याद रखना, स्टूडेंट मे रिमेंबर यू बाय द ड्रेस। व्हेन आई एम अ स्टूडेंट ऑफ भावनगर सर पीपी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अभी जब हम मिलते हैं तो हम अपने टीचर्स, अपने प्रोफेसर को किस प्रकार से याद करते हैं। वो व्हाइट कलर का शर्ट और पैंट पहनने वाले प्रोफेसर का नाम क्या था? नाम याद नहीं रहा, उसका सब्जेक्ट याद नहीं रहा, उसका कपड़ा हमको याद रह गया, उसके जो ड्रेसिंग थे वो हमको याद रह गई। वो जो मैडम थी वो यहाँ पे गुलाब डाल के या फिर वो मोगरा डाल के रोज आती थी, उसका नाम क्या था? वो मैडम याद नहीं रहा, लेकिन उसके माथे पे जो गुलाब था वो याद रह गया। मतलब टीचर स्टूडेंट्स रिमेंबर्स अस मे बी बाय ड्रेसिंग, मे बी बाय अवर स्टाइल। और इसीलिए दोस्तों, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इतनी बातें हमको बहुत गौर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, क्रिएटिव एडिटिंग वो रह गया था। क्रिएटिव एडिटिंग में यदि कुछ अच्छी तरीके से हम एडिट कर पाए और खास करके एनिमेशन में बहुत गौर करेंगे तो इट विल बी आई कैचिंग, इट विल बी अट्रैक्टिव, और हमारा जो ऑडियंस है इसको पकड़ के रखेगा। थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। जितने भी पेरेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले वी विल हैव टू क्रिएट एन एटमोस्फियर फॉर द स्टडी। पढ़ाई करने का माहौल घर में देना पड़ेगा। सबसे पहले यदि हम भौतिक फिजिकल फैसिलिटी की बात करेंगे तो बच्चे को नॉइज फ्री एक जगह, घर में एक कॉर्नर, वी विल हैव टू एक्सक्लूसिवली डेडिकेट दिस कॉर्नर फॉर द स्टडी पर्पस। घर में बच्चों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट, अच्छी क्वालिटी का एक टैबलेट या लैपटॉप या फिर कोई मोबाइल भी लाके देना पड़ेगा। और बच्चे को घर में अपना थोड़ा सा आइसोलेशन हो जाए, इस प्रकार का माहौल भी खड़ा करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम नाउ, अभी आपका बच्चा आपके घर में ही रहने वाला है, तो हमको उसको स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर बनाना है। और स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर में 5 बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला। सबसे पहली बात, घर में बिन जरूरी टेलीविजन या फिर ऐसे कोई म्यूजिक, इसकी आवाज न हो या कम हो, वो हमको बहुत गौर करना है। क्योंकि हमारा बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है और उसको पढ़ाई में ये आवाज उसको डिस्टर्ब हो सकती है। तो घर में टेलीविजन देखने का एक समय फिक्स नक्की होना चाहिए, और ये नक्की समय पे ही टीवी चलेगा, बाकी के समय में टीवी नहीं चलेगा। पापा बाहर बैठ के आईपीएल की मीटिंग मैच देख रहे हैं या फिर कपिल का शो देख रहा है और अपने घर में पढ़ाई हो रही है, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा। तो नंबर 1, घर में हमको नॉइज नहीं हो, इस प्रकार का एक वातावरण करना पड़ेगा। नंबर 2, घर में बिन जरूरी बातें नहीं होनी चाहिए जो बच्चे के दिमाग के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट करती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, रिलेवेंट एग्जाम्पल देखिए, मैं आपके साथ बात करना चाहूंगा। हम सोचेंगे कि बच्चे के दिमाग के ऊपर वो तो अपनी पढ़ाई कर, नहीं, वो हमको देख रहा है, वो हमको सुन रहा है। कुछ दिन पहले मैं भरूच में काम कर रहा था,
बिफोर कोविड की बात है, तो एक छोटा सा बच्चा का काउंसलिंग का काम आया था। उसके पेरेंट उसको लेके आए थे। बच्चे की उम्र होगी करीबन 8-9 साल, और 9 साल का बच्चा, वैसे तो ही वाज नॉर्मल बिफोर 3 और 4 मंथ या 6 मंथ, लेकिन 3-4 महीने में बच्चे ने अपना इंटरेस्ट कम कर दिया, और ऐसा कह सकते हैं कि ही वाज नॉट फीलिंग हैप्पीनेस, अंदर से वो सुख, वो हैप्पीनेस नहीं था। माँ बाप लेके आए, बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, ओ ऐसे ही पूरे दिन बैठा रहता है। तो मैंने सोचा कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम है। मैंने बच्चे से बात की, लेकिन बच्चा इतना ओपन नहीं हो रहा था, तो धीरे से मैंने उसके पेरेंट को बाहर भेज दिया। मैंने आई वाज डूइंग सम डिस्कशन विद द चाइल्ड। मैंने बच्चे को, स्टूडेंट को अपना दोस्त बनाया, एक दो चॉकलेट की बात की, उसको अच्छा जोक सुनाया, उसका लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछा। करीबन करीबन आधा घंटा अलग अलग ट्रिक से मैंने उसको ओपन अप करने की कोशिश की। लास्ट में मैंने एक सवाल पूछा कि तुझको मुझे मुझसे कुछ जानना है? डू यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग? यू वांट टू नो एनीथिंग फ्रॉम मी? और इसीलिए ये जो बात बोली, तो जो छोटा बच्चा था वो 8-9 साल का, उसने मुझे बोला कि सर हाँ, मुझे पूछना है। तो मैंने बोला हाँ, बोल बेटा क्या पूछना है, बोल। तो उसने पूछा कि सर क्या जो नई मम्मी होती है वो बहुत मारती है? दोस्तों बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ। नई मम्मी बहुत मारती है। मैंने बोला ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ? नहीं नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने सुना है कि नई मम्मी बहुत मारती है। मैंने बोला बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। और बाद में जब मैं पेरेंट्स से मिला, उसकी बात को मैंने डी लेयर किया, तब मालूम पड़ा कि हस्बैंड वाइफ दोनों जब झगड़ा करते थे, तो वाइफ का एक फिक्स डायलॉग हुआ करता था कि मैं चली जाऊंगा और नहीं आएगी ना, तब मालूम पड़ेगा कि वो कैसे ये आपके साथ बर्ताव करती है। अभी ये बात बच्चे के दिमाग पे ऊपर बहुत गंभीर रूप से नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रही थी। और इसीलिए नंबर 2, बच्चों के सामने हमारी तू मैं ये कुछ बात करनी नहीं है। नंबर 3, हमारे घर पे ज्यादा गेस्ट, ज्यादा पार्टी, ज्यादा कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो सके तो कम करना है, क्योंकि बच्चा पढ़ रहा है, ब्रेन एट वर्क, दिमाग काम कर रहा है। तो ये तीसरी बात है। चौथी बात है, हमको बच्चे के सामने एक रोल प्ले करके एक वैल्यूज, क्योंकि वैल्यू सिखाने की जिम्मेवारी अब माँ बाप की आ गई है, तो अब वैल्यू सिखाने के लिए वी विल हैव टू डेमोस्ट्रेट। हमारे गुजरात में प्रमुख स्वामी महाराज जो थे, वो बहुत अच्छी बात करते थे कि बच्चों की हाजिरी में उसके सीनियर यानी कि माँ बाप का जो वर्तन है, वो बच्चों के लिए तो शिक्षण है। इन प्रेजेंस ऑफ द चाइल्ड, बिहेवियर ऑफ द पेरेंट्स इज एन एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट, फॉर द चाइल्ड। बच्चे के लिए तो वो एजुकेशन है। और इसीलिए हम जो भी बिहेव करेंगे वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना है। हमको रिस्पॉन्सिबल पेरेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रूप से ये देखा गया है कि दोस्तों बहुत से आज ये भारतवर्ष में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो फिजिकली माँ बाप बनने के लिए तैयार है, मेंटली माँ बाप बनने के लिए शायद तैयार नहीं है। और इसीलिए वी विल हैव टू डेमोस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ आवर चाइल्ड कि उसको हम इस प्रकार का वातावरण दे सके। और पांचवी बात है, बच्चों के पास हम कभी भी परसेंटेज की डिमांड नहीं करेंगे। We will not demand the percentage. This is the very important factor. हम उसके साथ एक्टिविटी की डिमांड करेंगे। इफ यू आर टारगेटिंग कि हमारा बच्चा है वो 10th में 90% लाए, तो बार बार नहीं बोलना है 90 90 90 आना चाहिए, नो। बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग परसेंटेज, हम उसको बोलेंगे देख बेटा, रोज की तुझे 10 से 12 कलाक तक, 12 घंटे तक यू विल हैव टू प्रिपेयर कंटिन्यूअसली बाय हार्ट, और बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये 5 बातें हैं, वो एटमॉस्फेयर घर में पढ़ाई का बनाने के लिए हमको करना पड़ेगा। एन एक्सक्लूसिव कॉर्नर फॉर द स्टडी, हाई स्पीड इंटरनेट और सेल फोन देना पड़ेगा। उसके वैल्यू एजुकेशन के लिए हमको डेमोस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वैल्यू का डेमोस्ट्रेशन ही उसका सॉल्यूशन है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। एट द सेम टाइम ओपन फोरम फॉर द डिस्कशन, बहुत बड़ी बात है। मैं कभी कभार बोलता हूँ, बच्चा अपनी माँ को कहता है और माँ अपने उसके हस्बैंड को यानी कि बच्चे के फादर को कहता है कि इसको ये चाहिए। बाप का ताप कभी लगना नहीं चाहिए। और 21st सेंचुरी का पेरेंटिंग हम सीख रहे हैं, इसीलिए दोस्तों यदि बाप का ताप लग गया तो बच्चा और इसके साथ बीच में एक गैप हो जाएगा।
और इसको कम करने के लिए वी विल हैव टू गो फॉर ओपन फोरम डिस्कशन। कुछ भी बात है घर में सभी को अपना मंतव्य रखने की, एवरीबडी इज हैविंग दैट राइट टू कीप देयर ओन ओपिनियन। दिन में एक बार हो सकता है तो फैमिली के साथ लंच या डिनर करना है। और एक बड़ी बात है स्पोर्ट्स। दोस्तों, बच्चे हैं जिसमें नया खून आ रहा है, नया जोम आ रहा है, नया जोश आ रहा है। अभी स्कूल में जब तक बच्चा नहीं जाता है तब तक वो एनर्जी को कहीं डाइवर्ट करना है, और इसलिए माँ या बाप अपने बच्चे के साथ कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उसके साथ शामिल हो। और स्पोर्ट्स एक्टिविटी मतलब ऑनलाइन गेम, डिजिटल गेम या चेस की बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें फिजिकली थोड़ा सा श्रम हो जाए, फिजिकली उसका कुछ काम करना पड़े, ऐसी गेम। और कोई काम नहीं करना है तो आप अपने बच्चे के साथ पंजाबी लड़ा सकते हो, अपनी पिलो की फाइट भी कर सकते हो, लेकिन एक्साइटमेंट होना चाहिए। और बाद में मदर या फादर को हारना है। जब हम बच्चे के सामने हार जाते हैं, अपना बच्चा है इसके साथ ऐसी फाइटिंग करके, कोई कंपटीशन करके, कोई चैलेंज लगा के जब हार जाते हैं, तब बच्चे में फीलिंग ऑफ विनिंग यानी कि जीतने की एक इच्छा प्रकट होती है और उसमें वो सेंस आती है। कभी कभी ऐसा मैंने देखा है, बहुत से ऐसे पेरेंट हैं जो बच्चे के साथ ऐसे कंपटीशन करते हैं, हार जाते हैं, और हारने के बाद बच्चे में वो सेंस ऑफ विनिंग जो आती है वो कुछ अलग से होती है, और धीरे धीरे वो इम्पार्ट हो जाती है। और दोस्तों, स्लाइड में जो ब्लू कलर का लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज ट्रस्ट बट वेरीफाई। आप बच्चे को, आपका बच्चा 15-16 साल का है, आपने इंटरनेट भी दे दिया, हाई स्पीड इंटरनेट के साथ अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या अच्छा मोबाइल भी दे दिया। ये जो है ना, ये सब कुछ देने के बाद एक बहुत मैनेजमेंट का रूल है, दैट इज ऑलवेज ट्रस्ट। बच्चों के ऊपर विश्वास करना है, लेकिन वो विश्वास को वेरीफाई भी करना है। क्योंकि आज जो हमारा बच्चा है वो इमेच्योर है, शायद 15-16 साल की उम्र में उसके पास वो परिपक्वता, वो मैच्योरिटी नहीं है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। मैं कहता हूं ये गूगल है, वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के पास आप जो भी मांगेंगे आपको मिलेगा। यदि आप मांगेंगे कि स्टीफन हॉकिंस, तो स्टीफन हॉकिंस आपकी सब कुछ। हेलो, यू हैव अ कनेक्शन प्रॉब्लम। एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. ओके, थैंक यू। तो यदि स्टीफन हॉकिंस इसमें नाम डालेंगे तो उसकी सभी रिसर्च है वो सब कुछ आएगा। और दोस्तों, साम पित्रोलॉजी का नाम डालेंगे तो ये सब कुछ आएगा। सनी लियोन का नाम डालेंगे तो ये नाम आएगा। अभी गूगल से क्या मांगना, वो मैच्योरिटी हमारे बच्चों में शायद नहीं हो। तो दोस्तों, हमको we will have to trust, but we will have to verify also. हमको verify भी करना पड़ेगा. This point of remember always trust but verify में the point they want to say is that हमने बच्चों को इंटरनेट दे दिया, we have given the phones and we have given the privacy जहाँ पे वो एक isolated कोने में बैठ के अपना पूरा स्टडी कर सकते हैं. So we have to trust them that they are utilizing those technology and all the facilities in a proper way. But with that trust we have to verify time by time कि कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे. So this is the point he is talking about. So overall he just want to share you the complete detail about the previous condition of the teachers and parents before the COVID and after COVID effect. तो पहले जो हमारा शिफ्ट था, पहले जो हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ टीचर्स एंड एज अ पेरेंट था, that was quite different. That teacher is going to teach you about the value education and other parts, and parents all was taken care of other things and nutrition and everything. But I think after the COVID effect, he just explained very nicely that the role of parents is changing, the role of teachers is changing, and the teachers have to go more on technological basis, and he explained all the details very nicely. I think sir is with us. So sir, can you continue? Yes, sir. Thank you very much for helping me. Next slide, please. I think we are also done with the our content. लेकिन दोस्तों, मैं लास्ट 2 मिनट में जब ओपन सेशन हम ओपन करते हैं, इसके पहले ये बात कहना चाहूंगा
कि जो साइंस ऑफ ऑनलाइन टीचिंग का मैंने जो 30 मिनट का ब्रेकअप दिया है, वो ब्रेकअप को जरा गौर से देखना। और सेकेंडली पेरेंट्स को जो मैंने टिप्स दिया है, वो पेरेंट में खास करके घर में जब बच्चा पढ़ता है, तब आप बच्चे के अंदर वैल्यू एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जरा गौर से सोचना। मुझे लगता है कि अभी लास्ट 5, 7, 10 मिनट जो बाकी है, ओपन सेशन में जाते हैं। सो ओवर टू शिवानी। थैंक यू। Thank you, sir. I would also like to invite Rumit sir on stage. And sir, we have a question from Ghanshyam sir. The question is how to develop EQ through online teaching. ऑनलाइन टीचिंग में देखो ऐसा है कि मैंने जैसे मेरी स्लाइड आपने देखी होगी कि केंद्र में बच्चा है, और केंद्र में जब बच्चा है तब उसको दो प्रकार से दो एजेंसियां उसको हेल्प कर रही है। एक एजेंसी का नाम है टीचर, दूसरी एजेंसी का नाम है पेरेंट। तो इमोशनल क्वेश्चन को यदि डेवलप करना है तो मुझे लगता है कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट कि उसमें वो इमोशन थोड़ा सा जागृत करे। यदि वो बच्चा स्कूल में जाता है तो शायद ऑफलाइन में टीचर उसको इमोशनल क्वेश्चन के बारे में रिलेवेंट एग्जांपल दे सकते थे, लेकिन नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट। पेरेंट की जिम्मेवारी बढ़ गई है। अभी कैसे करना है इमोशनल क्वेश्चन को, इसी कोई बुक नहीं है, लेकिन माँ बाप छोटी छोटी बात के ऊपर उसकी संवेदना प्रकट हो, ऐसे एग्जाम्पल या ऐसे एक्ट से ही इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। यस मैम। Yes, so other questions, if you all are having कोई भी question है किसी को, तो you can type in the chat box. Meanwhile, Rumit sir, please, your views. Yeah, so I was sharing the same thing that sir has explained the whole scenario beautifully, and mostly the technical part and what is the changing role of teachers and parents they have explained. And I think everybody is facing the same, like we have to go with online education. We don't have any other options right now, so we can't blame that, okay, you should go, then this is the best learning. I think online education is also one of the best part, and we have to go with this because after in new normal life, online education is must now. तो शायद we have to think about the explain the technical parts, explain कि हमें अगर एक सेशन भी तैयार करना है तो we have to utilize our 1 hour और उसका प्रेजेंटेशन ठीक से तैयार करें, ताकि नाउ वी हैव टू लर्न दिस कि हम बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंटेशन से के थ्रू या डिफरेंट वीडियोस के थ्रू हम उसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं। देयर आर मैनी स्कूल्स दोज हु आर यूटिलाइजिंग दोज थिंग्स। काफी कोई बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंडिविजुअली उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल। तो हमें बाकी के टीचरों को भी इसके लिए तैयार करना है। इवन नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स आर इंक्रीजिंग। तो पेरेंट्स को एजुकेशन के अलावा हमें ये भी साथ साथ में ध्यान रखना है कि पूरा दिन बच्चा सिर्फ स्क्रीन के ऊपर ना रहे। वी हैव टू स्पेयर सम गुड टाइम विद देम, बिकॉज इन द सिचुएशन ऑफ द लॉकडाउन इतना बाहर लोगों से घुलना मिलना होता नहीं है, एंड कंटिन्यूसली सुबह से शाम अगर हम स्क्रीन के ऊपर रहते हैं, सो डेफिनेटली it's create a lot of effect on our own character and behavior patterns. So I think teachers को भी parents को भी बहुत सारा ध्यान रखना है, खासकर value addition के लिए. And I think we have lot many questions, Shivani, if you can continue. Yeah, so the next question we have is, what is your comment on flexibility of timings for home studies, and what about disciplinary relationship that is normally between a student and teacher only than parents? Yeah, it's a really very good question, and मुझे लगता है कि this is the good or plus point of this online education. यदि ऑनलाइन एजुकेशन रिकॉर्डेड है, वो आराम से बच्चा अपने कन्वीनियंसी पे उसको देख सकता है, तो बच्चों का जो एक उसका लर्निंग टाइम है, आइदर इन द मॉर्निंग और इन द लेट नाइट, उसके साथ वो एडजस्ट भी कर सकता है। सो व्हाट इज योर कमेंट ऑन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टाइमिंग? मुझे लगता है कि यदि वो फ्लेक्सिबल टाइम है और रिकॉर्डेड वीडियो देखना है, तो बच्चे को स्टडी को, क्योंकि जब स्कूल में ऑफलाइन में जाएगा तब तो उसको सुबह में 8 से दोपहर के 2 बजे तक या फिर 11 से 5 में ही पढ़ना पड़ेगा। मे बी उसका ये लर्निंग टाइम न हो, उसका जो बेस्ट टाइम है उसको उस समय पे पढ़ाने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी। सो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज। दूसरी बात आपने पूछी है कि रिलेशनशिप नॉर्मली बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, स्टूडेंट और टीचर के बीच में डिसिप्लिनरी एक रिलेशन तो रहता ही है, लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूं कि बार बार जिम्मेवारी माँ बाप की बढ़ गई है।
और इसीलिए अब माँ बाप को गुजराती ना બે શબ્દ છે गुजराती के और हिंदी भी वही शब्द है, बच्चों के साथ हार्श नहीं होना है, स्ट्रिक्ट होना है। कड़क होऊं અને कठोर होऊं વચ્ચે बहुत अंतर છે। हमको अब उसके साथ स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, लेकिन हार्श न बन जाए इसका तैयारी पे रखना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। यस मैम। Next question is how to deal with mathematics in 30 minutes as it's vast subject and clearing the classwork and homework as well as doubts. How to help wards and pupil with it? या नॉर्मली क्लास में भी हम ऑफलाइन टीचिंग करते हैं तो 45 मिनट का हमारा एक लेक्चर रहता है। यदि यहाँ पे 30 मिनट की जगह पे 35 या 40 मिनट का भी हम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो 45 मिनट में हम कैसे मैनेज करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे। और बाद में आती है क्लास वर्क और होमवर्क की जो बात है, मुझे लगता है इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट बच्चा आपको पर्सनल कोई व्हाट्सएप पे या मेल पे भेज दे और आप इसको रेक्टिफाई या क्लियर करें। और बस में मेरा जो 30 मिनट का आपको ब्रेकअप दिया है, इसमें डाउट क्लियरिटी के लिए तो ऑलरेडी जगह रखी है वहां पे कि जहां पे आप बच्चे के साथ डाउट क्लियर कर सकते हो। यस मैम, एनी अदर क्वेश्चन? No sir, so if anyone is having any other questions please type in because we are towards the end of the session. Meanwhile, I would just like to tell कि हमारे मेंटोपाइन अपडेट्स का एक ग्रुप है, so I'll just share a link with everyone जहाँ पे हम लोग रेगुलरली जो भी नेक्स्ट सेशन आने वाला हो उसके लिए मैसेजेस पोस्ट करते हैं। So you can join this group and you can get all the updates regarding the Mentopine session. And one more thing I would just like to add, because I can see in audience there are many teachers and principals. So those who are know about LEAD and LEAD organization, we always work for the adolescents with the proper scientific way to make them and nurture them with the leadership capabilities. And every year we are going to launch a LEAD Awards, जो कि it is designed very scientifically with full of activities, and the team of psychologists have designed one psychometric assessment. So we go with discover, develop, and demonstrate part. So if your schools want to participate or you want some more information, we will definitely send you the brochure and other parts. So from today onwards, the registrations are starts. So if possible, I will definitely share you the full timeline and all the activities. But it is a full program, and I think the first program which designed to develop the capacity, and it is a competition of leadership. जहाँ पे बच्चा going to discover their own potential, their lacking parts, their limitations, and come to know about that how to overcome from this. And then in a demonstrate part, we have a many lead camps are there with the development activities of developing confidence, critical thinking, public speaking, decision making skills, and all the leadership skills required. So we have a beautifully designed whole program for this with lot of activities and efforts. So yeah, your school can participate. It is a competition of school as well. So I'll definitely share all the details and video with you guys. But till that time, if you have more queries or any updates, you can ask us on email ID and on given contact number. I think we have some more questions, Shivani, if you want to take. Yes, so there is a question from Sushmita Dikshit. I always wonder why success is considered only on monetary basis. Why parents force the students not to choose the career and subjects of students' own interest? Can, as a teacher, we can do something about this? Yes, मुझे जो प्रश्न समझ में आया कि I always wonder why success is considered only on the monetary basis. Yes, जिसमें ज्यादा कमाई है इसको हम बहुत सफलता वाली ब्रांच या अपने जो प्रोफेशन की लाइन है इसको हम समझते हैं। एब्सोल्युटली राइट। देखो ऐसा है कि इंटरेस्ट जो बच्चे में, आपने शब्द यूज किया है इंटरेस्ट है, वो समय के साथ बदलने वाली घटना है। इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यदि बच्चा आप अनटोल्ड स्टोरी ऑफ MS धोनी मूवी देख के आया है तो बोलेगा पापा मुझे क्रिकेटर बनना है, और 2-3 महीने 6 महीने के बाद यदि वो मैरी कॉम देख के आया है तो बोले अब तो मुझे बॉक्सर बनना है, या फिर और कोई मूवी देख के आया तो अभी मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो बच्चे में इंटरेस्ट की वजह से, इंटरेस्ट की जो बात है, इससे कभी करियर सिलेक्शन नहीं होना चाहिए।
करियर सिलेक्शन होना चाहिए उसकी इंटेलिजेंस के हिसाब से। और ये इंटेलिजेंस किस प्रकार से है, इट विल ओनली कम थ्रू द टू थिंग्स, दो रास्ते हैं जिससे हम जान सकेंगे। पहला है साइकोमेट्रिक टेस्ट, यानी कि जो उसके एक्सपर्ट हैं उसका हम कुछ मदद लेते हैं और वो साइकोमेट्रिक टेस्ट की वजह से थोड़ा थोड़ा इसको हम जाने पाएंगे। दूसरा एक सटीक रास्ता है, बच्चे के साथ हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, बच्चे के कौन सा रस है, उसकी छोटी छोटी बातों को ऑब्जर्व करके यदि हम कहीं नोट करेंगे तो हम इसके ऊपर आ पाएंगे कि इस बच्चा किस दिशा में जाएगा। अभी बात रही कि क्या इंटरेस्ट के हिसाब से हम नहीं लेते हैं, तो इसमें ज्यादातर पेरेंट ऐसे होते हैं जो अपने अधूरे सपने बच्चों से पूरा करवाने के लिए उसके पास कोई चॉइस ही नहीं होता है, और इसीलिए वो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो बच्चा तुझे डॉक्टर बनना है। बिलीव मी फ्रेंड, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, हमारा बच्चा है वो हमारे अधूरे सपने पूरे करने के लिए इस दुनिया में नहीं आते हैं, और इस प्रकार का एक्ट हम नहीं करेंगे। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत से ऐसे मैं टीचर्स स्टूडेंट्स को जानता हूं, मैं पूछता हूं तू इंजीनियरिंग क्यों लिया, मेरे पापा ने बोला था इसीलिए लिया। अभी तीसरा सवाल इसमें ही है, हम एज ए टीचर क्या कर सकते हैं। एज ए टीचर आपको एक काउंसलिंग का आप सेशन रख सकते हो, आप पेरेंट का काउंसलिंग करें ताकि पेरेंट बच्चों के ऊपर फोर्स न करे। मुझे लगता है दिस स्टेप कैन मेक सम नोटेबल चेंजेस। यस मैम। So, next question Yeah, I is would also like to add, Shivani, I would just like to add in that part the same way what sir says कि yes, the role of teacher is very big in that, because sometimes ऐसा होता है कि parents are forcing, because as a parenting में कई बार सर ने बोला कि physically तो as a parents we are ready but mentally we are not, और कई बार ऐसा होता है कि they don't know that much world that कहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं in career. So जो भी areas में they have a knowledge, they force their child कि अच्छा आप ये कर लो, because ultimately they don't want to face that अच्छा मुझे नहीं पता. If we see our parents, तो कभी भी हमें ये देखने को नहीं मिलेगा कि वो ऐसा बोलेंगे हाँ मुझे नहीं पता तू किसी और से पूछ ले. So sometimes ऐसा होता है, and that's why मैम it's may happen that teachers या parents forcing them to particular career जहाँ पे monetary basis पे हो, because अब तक उन्होंने यही world देखा है. So now it is the responsibility of teachers also कि make them aware about the different qualities and different market demands. जैसे सर ने बात की psychometric assessment की, so I love to share कि lead जहाँ पे मैं lead awards की बात कर रहा था about that psychometric assessment, it is give you the complete analysis of 17 leadership traits of the students, और वो high school students के लिए है from grade 8 to 12, right? तो जब आप वो टेस्ट कंप्लीट करोगे, and it is in available in different Gujarati, Hindi and English. So when you complete your test, at the same time complete analysis report will be on your hand, and as a teacher you can see that report if you participate in awards, right? And you can analyze and it give you the complete analysis कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंस में कितना है, कैरेक्टर में कितना है, कोलैबोरेशन स्किल्स में कैसा है, एंड कॉम्पिटेंस के अंदर कैसा है, डिसीजन मेकिंग में कैसा है. और हर एक चीज का एक डिटेल रिपोर्ट है कि कॉन्फिडेंस में भी देयर आर सर्टेन थिंग्स कि हाउ दे टेक चैलेंज, हाउ दे विजुअलाइज द थिंग्स, हाउ दे कोप अप विद द स्ट्रेस एंड लॉट मेनी थिंग्स. तो यहाँ पे वी कैन अंडरस्टूड थ्रू द साइकोमेट्रिक टूल्स कि हम बच्चों को कैसे आगे गाइड कर सके एज ए टीचर. देयर आर ऑल्सो साइकोमेट्रिक असेसमेंट फॉर द करियर सक्सेशन रिपोर्ट, जहाँ पे बच्चों को कौन सा करियर चूज करना चाहिए बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटी. ऐसा भी साइकोमेट्रिक टूल्स अवेलेबल है. If you want more details, I can definitely share to you. Just you can mail it to us or call us. But yeah, there are tools are available, and I think this is the role of teachers कि हम थोड़ा सा उसको expand कर सके. You can ask the experts कि एक बार आके आपका orientation आपकी schools के अंदर with your parents, so they can guide you. And we are welcome if you want certain kind of help from lead. We are always there to help you. So yeah, this is my answer on this. Shivani Nagandi. There is another question. Nowadays, connectivity is very important. Apart from how hard we try or work, we feel helpless sometimes when connectivity goes. How can a teacher stay motivated? फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि जो हमारे हाथ में है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स नाम का एक हमारा मैनेजमेंट का नियम आता है. हमारे हाथ में जो कंट्रोलेबल है वो है बेस्ट देना.
क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी की ये बात है, तो मुझे लगता है कि हाई स्पीड इंटरनेट हर जगह पे नहीं होगा। हम अभी बात कर रहे हैं और हमारे बीच में ये कनेक्टिविटी लॉस्ट हो गई थी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इसमें कोई मायूस होने की आवश्यकता नहीं है, बट वो तो इसके साथ हमको सेट होना पड़ेगा। इसके साथ हमको सेट होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक टीचर इतनी छोटी सी बात में कभी डिमोटिवेट नहीं होगा। वो तो समझेगा कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट की वजह से शायद कुछ ना कुछ खराबी हो भी सकती है। सो आई थिंक दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। विल हैव टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। Thank you, sir. Dhrumit sir, anything you want to share? I think I'm agree with sir that sometimes it may happen that but there is no and right now अभी आप ऐसा सोचे ना एज अ टीचर कि अभी हम कहीं पे क्लास में हैं, कहीं पे किसी ने शैतानी कर दी या बाहर कुछ ऐसा हुआ जहाँ पे कहीं डिस्ट्रैक्शन आ गया, बट एज अ टीचर हम कैसा पूरा कवर कर लेते हैं। सो अभी दिस इज द न्यू सिचुएशन फॉर अस कि ऑनलाइन टीचिंग में ये कई बार होता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो अभी धीरे धीरे करके हमें भी उसमें नॉर्मल होते जाएंगे दैट वी कम टू नो अबाउट कि अच्छा अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं या कुछ और चीजें क्या है। मे बी वी कैन आस्क स्टूडेंट वेल इन एडवांस कि अगर बीच में कोई कनेक्टिविटी आती है तो यू कैन कंटिन्यू ऑन दिस टिल द टाइम आई एम गोइंग टू कम बैक एंड कनेक्ट विद यू ऑनलाइन अगेन। सो दीज आर द स्ट्रेटजीज। हाँ, और देयर शुड बी ऑलवेज प्लान बी एंड सी। सो उसके ऊपर आप पहले से ही प्लान करके या पहले से कुछ डिस्कस करके कर सकते हैं। एंड जितना आप उसको और आगे बढ़ाते जाओगे, सीखते जाओगे एंड अप्लाई करते जाओगे, आई थिंक और सारी चीजें हमारे लाइफ के अंदर और एज अ लर्निंग आती जाएगी विच कैन हेल्प अस अ लॉट। थैंक यू सर। ऑल्सो ध्रुमित सर ने लीड अवार्ड्स की बात की थी, तो मैंने एक लिंक शेयर की है आप सबकी स्क्रीन पे लीड अवार्ड्स के प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो आप लोग ये लिंक पे विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन सी कि 8 लीड अवार्ड्स इस बार कैसा है एंड क्या है। इस बार कम्प्लीटली वर्चुअल होने वाला है एंड बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को इस प्रोग्राम से। So if at all anyone is interested, please feel free to contact us. हमारे contact details भी screen पे है। And I think that was a very good session. Thank you परेश sir, आपने अपना time निकाला और आप हमारे सबके साथ जुड़े। It was very good and in the changing times, this was a very important topic to discuss. I think we have a last question, so we will take this question and then we will move on. Abhay Srivastav is asking, I just want to ask that how to be focused regards to our goal and also how to be a confident in thinking and making situation. ओके, इट्स अ रियली वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगता है कि आपकी 2 मिनट ज्यादा लूंगा मैडम। दोस्तों, आपकी बात बिल्कुल सही है। लोग हर जनवरी महीने में अपना गोल बनाते हैं, नई डायरी भी लाते हैं, या फिर कंपनी की ओर से दी हुई डायरी सबसे पहले पेज पे अपने अपने भगवान का नाम भी लिखते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लिखते हैं। और फर्स्ट पेज इज रियली वेरी गुड, अच्छे हैंडराइटिंग। 1 तारीख से लेके 13 तारीख की पूरा का पूरा पेज हम भरते हैं, अच्छी तरीके से भरते हैं। 14 या 15 तारीख का पेज खाली रहता है क्योंकि वो मकर संक्रांति काइट फ्लाइंग डे आता है। बाद में हम आधा आधा लिखते हैं। 26 जनवरी का दोबारा खाली आएगा और फरवरी महीने में बाद में हम लिखना बंद कर देंगे। और बिलीव मी, मार्च महीने में वो डायरी में वाइफ शाक भाजी के हिसाब लिखती है। अब ये सिचुएशन मैंने आपसे क्यों शेयर की, इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि जब तक हम गोल है वो गोल को अपनी इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक गोल गोल ही रह जाता है। वी विल हैव टू कनेक्ट अवर गोल along with our emotions, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप 100 रुपये का टारगेट लेके चलते हो, इफ यू हैव नॉट कनेक्टेड योर गोल विथ योर इमोशन, आप 80 पे अटक जाने वाले हैं। 80% ऑफ द गोल सेटिंग आर कंप्लीटिंग बाय 80% ओनली। तो सबसे पहला सॉल्यूशन है इमोशन के साथ अपने गोल को कनेक्ट करो। अब इमोशन के साथ कैसे करते हैं? इमोशन के साथ कनेक्ट करने के लिए आदमी को मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं, जवाब भी मैं ही दूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। गोल प्राप्त हो गया तो बाद में क्या मिलता है? गोल प्राप्त हो गया, आपने प्लान किया, प्लान आपको अचीव हो गया आपने, तो आपको क्या मिलने वाला? आपको 3 चीज मिलने वाले हैं। सबसे पहले सेल्फ रिलायंस, खुद के ऊपर अपने आप को एक वो कहते हैं एक मान होगा, एक सम्मान होगा। तो सबसे पहला हम सेल्फ रिस्पेक्ट मिलेगा। दूसरा होगा एक हैप्पीनेस मिलेगा।
सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, और तीसरा है फ्यूचर विजन मिलेगा कि इफ आई कैन अचीव दिस, नाउ आई शुड बिग थिंक। तो दोस्तों, ये तीनों चीजों को इमोशन के साथ यदि कनेक्ट करना है तो वी विल हैव टू फाइनलाइज, मैं ये प्राप्त करने के बाद किसको डेडिकेट करने वाला हूं। और यदि इमोशन के साथ कनेक्ट कर लिया, देन एंड देन वी कैन ओवर क्रॉस और वी कैन टच अवर गोल। अदरवाइज ये गोल को अचीव करना एक थोड़ा सा मुश्किल है। अभी जब वाई क्लियर है, WHY, तो आपके जो सवाल का दूसरा पार्ट है, इसका सॉल्यूशन आंसर यहां पे आएगा, इफ वाई इज क्लियर हाउ विल बी वेरी इजी। और इसीलिए इंसान जब घर से निकलो, सुबह में उठो, बात करो, ऑनलाइन ट्रेनिंग पे जाओ, कोई भी काम हो, आपका वाई शुड बी वेरी क्लियर। इफ वाई इज नॉट क्लियर, आप समय में भी स्पॉइल करेंगे, डिसीजन भी गलत लेने की संभावना है। और इसीलिए जिंदगी में कोई भी काम करो, योर वाई शुड बी वेरी क्लियर। Thank you very much. Thank you, sir. Last question. Okay, so we are taking the last question from Subrata Mitra, ma'am. It is few orthodox-minded persons are not ready to welcome the new mode of learning. Thus, it's affecting the life of their children. How to deal with that? Yes, exactly. It is going to affect. यदि हम परिवर्तन का स्वीकार नहीं करेंगे तो डायनासोर से लेके नोकिया तक हमारे सामने एग्जाम्पल है ही है। जो लोग परिवर्तन का स्वीकार नहीं करेंगे वो लोग इस मार्केट्स में, इस दुनिया से, इस पृथ्वी से नष्ट हो जाने वाले हैं। और वो कौन है, टीचर है या पेरेंट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों के भविष्य के ऊपर कैसी असर पड़ेगी। ये एक बात है। और दूसरी बात, बच्चा सीख लेगा, आपको ख्याल नहीं होगा तब भी, यदि वो बच्चे में पड़ा है तो ऑटोमेटिक सीख लेगा, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन हाँ, बिल्कुल बच्चे को हम जो वातावरण देने की, एटमॉस्फेयर देने की जो बात कर रहे हैं, इसमें तो बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है, वो नष्ट हो जाएगा। यस मैम। Thank you, sir. So I guess we are over with the session. And Reena Mittal ma'am and Deepti ma'am, thank you. We are glad that you enjoyed the session. Thank you, Paresh sir. Thank you, Dhrumit sir. आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा. And hope next time also we can have another session on another topic. So thank you very much.